हेलो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया था और सेक्स डिटर्मिनेशन टू टाइप की मैकेनिज़्म जो है हमने आपको बताया था, एक्सो टाइप एंड एक्स वाई टाइप। बट इन बोथ द मेल्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। इन दोनों में हमने कल भी जो मेल आपको बताया था कि इट इज़ द मेल हु डिसाइड्स वेदर द ऑफस्प्रिंग वुड बी मेल और फीमेल। इट इज़ द बिकॉज ऑफ द मेल हार्मोन विच इज़ डिफरेंट, दैट इज़ वाई. If Y gets fuses with X chromosome, then male or female is produced. It is the deciding factor lies with the male gamete. When deciding factor is male chromosome, that is known as male heterogamety, and best examples are some insects and human beings. But there are both these two types of are एक्सोटाइप एंड XY टाइप. सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास तीन टाइप्स हैं, एक्सोटाइप, XY टाइप एंड ZW टाइप. इन केस ऑफ ZW टाइप, फॉर एग्जांपल इन बर्ड्स, different mechanism is adopted. Here the female deciding factor is responsible. Female has different chromosomes, where male has the same chromosome. I have best illustration for you. You can see on the board. This is in case of birds. Male has 16 autosomes and similar type of chromosome, that is ZZ. But female has 16 autosomes plus ZW, means both the chromosomes are different. Now gametes produced are 8 plus Z and 8 plus Z. These are sperms. And these are ovas. Now what happens when one sperm from the male and one from egg ova from female fuses? A zygote is formed, and zygote becomes ZZ, and 8 plus 8 16. Then since both the chromosomes are similar, so it would be a male. Similarly, when another chromosome from male fuses with another one from female, then it becomes 16 plus ZW. Now this W chromosome is fertilized by Z, so ZW becomes female. Both are different. Similarly, this is male, this is female. What is the important to note is that in this case, in birds, female has two different chromosomes, so deciding factor is female. So this is known as female heterogamety. This is known as female heterogamety. Means what happens? Two different types of gametes in terms of sex chromosomes are produced by females in case of birds. This is known as female heterogamety. आपको एग्जाम में आ सकता है, what do you mean by male heterogamety and female heterogamety. Now we shall discuss what is mutation. Very important concept. What is meant by mutation? Mutation is a phenomenon in which results in alteration of DNA sequence and consequently results in changes in genotype and phenotype of an organism. ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें DNA की सीक्वेंस चेंज हो जाती है, और DNA की सीक्वेंस जैसे ही चेंज होती है
तो उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों चेंज हो जाते हैं और इसी चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फेनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ म्यूटेशन भी एक फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, म्यूटेशन के लिए। Now in chromosome, since genes are known to be located on chromosome, alteration in chromosome results in abnormalities and aberration, क्योंकि ये जीन जो हैं क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं और क्रोमोसोम्स में जैसे ही कोई चेंज आती है तो जीन्स में भी चेंज आ जाती है जिससे अल्ट्रेशन हो जाता है। क्रोमोसोमल एबेरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल। इन एडिशन टू द अबव, म्यूटेशन इज आल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। आगे जाके हम पढ़ेंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये कुछ नाइट्रोजन बेसिस होती हैं जो एडेनिन थाइमिन के साथ हमेशा जो बॉन्ड करती है और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ बॉन्ड करती है। तो इसकी ये सीक्वेंस, बेस सीक्वेंस जो है चेंज हो जाती है। दिस इज़ नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, मीन्स वी आर डिस्कसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। नाउ म्यूटेशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जांपल पॉइंट म्यूटेशन, म्यूटेशन अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर। जब उसके बेस पेयर नाइट्रोजनस बेस में कोई चेंज आ जाए तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं और इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। अभी हमने कहा कि कैंसरस सेल्स बन जाते हैं तो एक इन्फेक्शन हो जाती है, उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। हमारा सेल जो है एक कई की तरह जो है, कदाली की तरह जो है हो जाता है। देन कम्स फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, म्यूटेशन अराइजिंग ड्यू टू डिलीशन और इंजर्शन इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए की सीक्वेंस में कोई चीज़ डिलीट हो जाए या इंजर्ट हो जाए तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ये दूसरी टाइप हो गई। थर्ड है म्यूटाजेंस। अगर कुछ केमिकल्स हैं या फिज़िकल एजेंट्स हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन हो गई तो उसको हम म्यूटाजेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अल्ट्रा वायलेट रेज है, इसीलिए बोलते हैं कि कोई प्रेग्नेंट मदर या सिस्टर है तो उस वक्त उसको ज़्यादा एक्सरेज नहीं करवाना चाहिए क्योंकि वो एक्सरे जो अंदर जाकर उसमें म्यूटेशन कर सकती हैं। ज़्यादा वाइब्रेशन, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हैं ज़्यादा, जिससे भी इनविजिबल रेज़ या अल्ट्रा वायलेट रेज़ निकलती हैं वो रेज़ जो है अंदर जाके उसमें म्यूटेशन करती हैं। तो इस टाइप के म्यूटेशन को म्यूटाजेन कहते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स टाइप्स। नाउ वी शैल डिस्कस पेडिग्री एनालिसिस। Pedigree analysis, the idea that disorders are inherited, have been prevailing in human society since long. ये आइडिया कि बच्चों में अगर कोई डिसऑर्डर है जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे तो ये पेरेंट्स से ही बच्चों में आ जाता है, ये शुरू से ही इंसान को पता था। दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी of certain characteristic features in families. After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human beings began. जब मेंडल्स के लॉज को रीडिस्कवर किया गया तो उसके बाद कौन सी ट्रेट्स पेरेंट्स से इनहेरिट हुई उनको एनालिसिस शुरू हुआ, उनको अलग अलग करके देखना कौन से इन्फेक्टेड जीन हैं, किसके कारण वेरिएशन आई, किसके कारण जो है ये इन्फेक्शन है। सिंस इट इज़ एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन पी प्लांट और सम अदर ऑर्गेनिज्म आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब जैसे हमने
प्लांट्स में या पी में कुछ क्रॉस पोलिनेशन ऐसा करा दे, ह्यूमन बींग्स में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारे सोसाइटी के टैबूज ऐसे होते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें दूसरा कोई मैकेनिज़्म अडॉप्ट करना पड़ता है। स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट। अब यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री जो है स्टडी करनी पड़ती है किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। तो इसका अल्टरनेटिव हमें यहाँ से मिलता है, जहाँ उस ह्यूमन बीइंग की फैमिली हिस्ट्री, उसके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रैंड मदर, ये हिस्ट्री उनकी स्टडी की जाती है। सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशंस ऑफ ए फैमिली इज़ नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि जो मटर में मैकेनिज़्म हमने अडॉप्ट किया, या हम जो बाकी इंसेक्ट्स या ऑर्गेनिज्म में मेथड अडॉप्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में नहीं कर सकते, सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग्स में क्या किया जाता है, एक न्यू मेथड डिज़ाइन किया गया है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो उसकी स्टडी की जाती है। वहाँ से हमें इसका जो डाटा मिलता है उसी को पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में द इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। इसको एक फैमिली ट्री की तरह दिखाया जाता है। इन ह्यूमन जेनेटिक्स, पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स a strong tool which is utilized to trace the inheritance of specific trait, abnormality or disease। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो ये ह्यूमन बीइंग्स में एक बहुत बड़ा एक टूल माना जाता है। इसमें पर्टिकुलर ट्रेट्स की जो है एनालिसिस की जाती है, कौन सी एबनॉर्मल ट्रेट्स हैं, कौन सी एबनॉर्मल ट्रेट्स के कारण इसमें जेनेटिक डिजीज़ हो रही, ख़ानदानी बीमारियाँ, जैसे किसी के पेरेंट्स में बाई बर्थ ही कोई बीमारी है तो बच्चों में बाई बर्थ ही होगी, तो दादे परदादे से चली आ रही है, तो आज इसका ट्रीटमेंट भी होता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्टेड जीन्स। ये इन्फेक्टेड जीन जो है पास ऑन जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते रहती हैं। तो उसमें ये पेडिग्री एनालिसिस स्टडी करने से हमें उन चीज़ों, उन डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। DNA is believed to be the carrier of genetic information which passes unaltered from generation to generation. Mutation occasionally alters the genetic material and genetic diseases are believed to be associated with these alternation only। हमें पता है कि DNA जो है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी करता है, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है बिना चेंज हुए अनअल्टर्ड जो है चेंज शिफ्ट करते जाता है। और म्यूटेशन नॉर्मली जो है जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता है, और जेनेटिक डिजीज़ जो बनती हैं ये DNA के अल्टरेशन से ही होती हैं। This was all about mutation and pedigree analysis.